हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, वॉइस इज ऑडिबल। यस सर। Yes, sir. Okay, we can start now, huh? Okay, हमारे पास limited है, we have a lot of tasks also. Okay, we can start now. तो last class का हम just we will take a review of last class कि what we discussed in last class कि when synchronous, especially I am talking about synchronous generator, when synchronous generator is loaded, right? Voice is audible? Hello? Voice is audible? Yes, sir. I'm starting. When synchronous generator is loaded, और synchronous generator में आपने load connect किया, तो synchronous generator will give a output power. So three currents will flow. There will be a three-phase current output of synchronous generator. That three currents when flow through the stator winding या armature से जब current flow होगा तो three fluxes generate होंगे. These three fluxes, sinusoidal fluxes, gives rise to rotating flux. Rotating flux which rotates at synchronous speed. Say ns is equal to 120 f by p. So now we have two rotating flux. One is rotor rotating flux because rotor itself is rotating. And स्टेटर फ्लक्स इज रोटेटिंग फ्लक्स. रोटर में जो फ्लक्स इंड्यूस हुआ है वो रोटेटिंग नहीं है, बट रोटर घूम रहा है. सिंस रोटर इज रोटेटिंग, तो रोटर के नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फील्ड. एंड इन केस ऑफ स्टेटर स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन, थ्री साइनोसोडियल फ्लक्स का जो रिजल्टेंट है वो ऑटोमेटिकली घूम रहा है. ये कंसेप्ट हमने कल डिस्कस किया था कि in case of synchronous generator या induction motor, there is a rotating magnetic field produced by the stator. Stator में rotating magnetic field आती है. तो उस rotating magnetic field के वजह से stator का rotating magnetic field and rotor का rotating magnetic field, उसके वजह से क्या होता है? There is a reaction between stator flux and rotor flux. Or there is an interaction between stator flux and rotor flux, that reaction is called as armature reaction. The effect of main field flux on stator flux is called, or armature flux is called as armature reaction. ये बहुत बार पूछा जाता है. It is an interview question. What is armature reaction? What is armature reaction? The effect of main field flux, that is rotor flux, on stator या armature flux is called as armature reaction. It's called as armature reaction. तो armature reaction के वजह से हमारा output voltage of generator है ये थोड़ा सा drop हो जाता है. Because of armature reaction ये हमारा थोड़ा सा reduce हो जाता है. तो उसके वजह से एक रिएक्टेंस प्रोड्यूस होता है. दैट इज रिएक्टेंस इज कॉल्ड एज आर्मेचर रिएक्टेंस. एक खुद का लीकेज रिएक्टेंस होता है, जैसे ट्रांसफार्मर हमने पढ़े हैं, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है, ट्रांसफार्मर की में लीकेज रिएक्टेंस होता है. वैसे ही हम इक्विवेलेंट सर्किट लिखेंगे. तो और नेक्स्ट टॉपिक इज, लिखो, ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर. इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर. Draw the equivalent circuit of synchronous generator. Synchronous generator का हम equivalent circuit draw करेंगे. Right? We'll draw the equivalent circuit of synchronous generator. Right? तो equivalent circuit आपका synchronous generator कैसे draw होगा? जैसे हम ट्रांसफार्मर में जनरेटर का भी हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे. जस्ट लाइक अ ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट में क्या करते हैं, आप वाइंडिंग वगैरह बनाते हैं, तो वैसे ही इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर बहुत ही सिंपल होगा. ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ आपका, विल ड्रॉ इक्विवेलेंट
of synchronous generator on per phase basis. इसमें आएगा एक रेजिस्टेंस और एक आएगा दो रिएक्टेंस है. Sometimes the resistance of synchronous machine is resistance of synchronous machine RA. एक होता है लीकेज रिएक्टेंस और एक रिएक्टेंस बिकॉज ऑफ आर्मेचर. एंड आउटपुट जो मिलेगा सिंक्रोनस जनरेटर का आपको मिलेगा आउटपुट ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर इज V. Is it clear? Simple circuit है, मॉडल है, simple model. We call it as a model of synchronous generator. It consists of a one voltage source, EMF induced E, drop in resistance RA is resistance of armature winding per phase. देखो EMF induced कहाँ होगा? स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन, स्टेटर में, आर्मेचर में होगा. स्टेशनरी ऑफ पार्ट ऑफ द मशीन, आर्मेचर, हम उसे आर्मेचर बोलते हैं. ठीक है. डीसी मशीन की बात अलग होती है. डीसी मशीन में हम जो रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन है हम उसको बोलते हैं आर्मेचर. इज ए प्लेस वेयर एक्चुअल पावर होता है. पावर रोटर में नहीं होता, इसमें क्या पे होता है? स्टेटर में होता है. तो आर्मेचर में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो ई, उसमें आरए रेजिस्टेंस ड्रॉप हुआ पर फेज, लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप हुआ, एंड कल हमने पढ़ा था आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप हुआ. उसके बाद आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिला दैट इज V. This is the equivalent circuit of synchronous generator. We call it as an equivalent circuit of synchronous generator. Equivalent circuit of synchronous generator. If anybody having any queries, you can ask question, right? अब बिल्कुल don't be only listener. अगर आपको कोई questions है तो you can ask, right? There is no one-to-one interaction. तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो. ठीक है. This is the equivalent circuit of synchronous generator. Board is visible. Hello, board visible है? Yes sir. I hope so. Board is visible. Okay. ठीक है. Clear? So this is the equivalent circuit of synchronous generator. अब ब्लिंक कर रहा है क्या? क्या और क्लियर है? I hope so. ब्लिंक तो नहीं कर रहा ना? So this is all about equivalent circuit of synchronous generator. Simple है, ठीक है? तो एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस. तो इस दोनों लीकेज रिएक्टेंस को हम एक्सेस भी बोलते हैं. We call it as XS is equal to XL plus XA, where XS is called as synchronous reactance, XL is called as leakage reactance of synchronous machine, XA is called as armature reactance of synchronous machine. XA armature reactance of synchronous machine, XL is called as लीकेज रिएक्टेंस ऑफ सिंक्रोनस मशीन. अगर हमने ट्रांसफार्मर पढ़े थे तो आपने ऑलरेडी पढ़ा था द फ्लक्स डज नॉट फॉलो इंटेंडेड पाथ. सम फ्लक्स विल लीक विद इन अ वाइंडिंग, so that flux gives rise to leakage reactance. तो लीकेज रिएक्टेंस प्लस आर्मेचर रिएक्शन, ये दोनों को मिला के सिंक्रोनस मशीन का रिएक्टेंस बनता है, that is called as XS. अभी हम सिर्फ सेलिएंट पोल नहीं पढ़ रहे, सिलेंड्रिकल सिंक्रोनस मशीन पढ़ रहे. सेलिएंट पोल पढ़ेंगे तो उसका रिएक्टेंस थोड़ा अलग होता है. नाउ वी आर स्टडीइंग द मॉडल ऑफ सिलेंड्रिकल सिंक्रोनस मशीन. सिलेंड्रिकल पोल सिंक्रोनस मशीन, ठीक है. सेलिएंट पोल हम जब सिंक्रोनस मशीन पढ़ेंगे तो उसका रिएक्टेंस में थोड़ा सा चेंज आएगा, दैट वी विल सी लेटर ऑन. ठीक है. दिस इज सिलेंड्रिकल सिंक्रोनस मशीन. I hope so it is clear. This equivalent circuit is clear to everybody. और इसका फाइनल इक्वेशन हम लिख सकते हैं E is equal to, we can write the equation E is equal to just Kirchhoff voltage law V plus
IARA प्लस J टाइम्स IA एक्सेस। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, अगर मैं एक्सेस ले रहा हूं तो ये एक्सेस होगा। करंट इज I। अगर हमने लोड कनेक्ट किया तो करंट फ्लो हो रहा है, वो क्या फ्लो हो रहा है? करंट वैल्यू इज IA, राइट? तो बी केयरफुल, ये इक्वेशन आपको लिखना आना चाहिए। ये इक्वेशन बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स। नाउ व्हेन यू कम इन नेक्स्ट क्लास, पूरा न्यूमेरिकल का क्रक्स इसी इक्वेशन पे बनेगा। E इज इक्वल टू V प्लस IARA प्लस J टाइम्स IA। तो हम J कंसीडर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स डोमेन में ही हमें इसे करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो। नेक्स्ट टॉपिक मैंने लास्ट क्लास में एट द एंड ऑफ द क्लास बोला था कि फेजर डायग्राम थोड़ा सा देख के आना ट्रांसफार्मर का। लिखो राइट ना, फेजर डायग्राम ऑफ सिलेंड्रिकल पोल सिंक्रोनस जनरेटर। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर ऑफ सिलेंड्रिकल, फेजर डायग्राम ऑफ सिलेंड्रिकल पोल सिंक्रोनस जनरेटर। मैं सिलेंड्रिकल इसलिए बोल रहा हूं कि फेजर डायग्राम, क्योंकि हम सेलेंट पोल पढ़ेंगे तो उसका फेजर डायग्राम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़े से स्टेप्स में ना ये फेजर डायग्राम को बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा। बहुत सारे फेजर डायग्राम बनेंगे। दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फेजर डायग्राम समझ में नहीं आएगा, अगर वॉइस आपको क्लियर नहीं आ रही है तो आफ्टर क्लास मैं अपलोड कर दूंगा, तो इस वीडियो को थोड़ा केयरफुली देखना। ये फेजर डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना फेजर डायग्राम के आप इसे पढ़ नहीं पाओगे। फेजर डायग्राम आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फेजर डायग्राम ड्रॉ करना। ठीक है, तो फेजर डायग्राम जैसे हम ट्रांसफार्मर के बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है, E इज इक्वल टू V प्लस IARA प्लस IA एक्सेस या IA एक्सएल प्लस XA। ठीक है, तो इसका हमको अभी फेजर डायग्राम बनाना है। तो बी केयरफुल, थोड़ा सा केयरफुली आप नोटिस करो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन आता है, जस्ट आस्क मी द क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। यू आर ऑलवेज वेलकम। आप इंटरप्ट करके पूछ सकते हो। और फेजर डायग्राम में कंफ्यूजन इसलिए होता है कि सिलेंड्रिकल पोल का फेजर डायग्राम अलग बनेगा, सेलिएंट पोल का अलग बनेगा, सिंक्रोनस जनरेटर का अलग बनेगा, सिंक्रोनस मोटर का अलग बनेगा। तो ये लास्ट में फिर कंफ्यूजन होता है कि हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, फेजर डायग्राम किसका ड्रॉ कर रहे हैं। इसलिए बाकी इट इज वेरी इजी, कंपेयर टू ट्रांसफार्मर से भी इजी है। बस आपको जो मैंने इक्वेशन लिखा है उसको फेजर डायग्राम में आपको इंप्लीमेंट करना है। इसमें भी 3 केसेस है। फर्स्ट केस इज यूनिटी पावर फैक्टर। फर्स्ट केस इज यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर मीन्स terminal voltage of synchronous generator and current or load is resistive load, they are in phase. V and IA are in phase. Unity power factor का मैं तीनों फेजर डायग्राम बना रहा हूं। This is our terminal voltage V and current क्या होगा जाएगा? Current will be in phase. Current will be in phase with the terminal voltage. Current आपका phase में रहना चाहिए। ठीक है, करंट आपका काय में रहना चाहिए? फेस में रहना चाहिए। तो करंट क्या हो जाएगा? यू हैव टू ड्रॉ करंट इज इन सेम फेस। सेम फेस मींस करंट ही मैंने वहीं पे ड्रॉ किया आगे। ठीक है, क्लियर है? इफ एनीबॉडी हैविंग एनी कंफ्यूजन जस्ट आस्क मी। ठीक है, अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो रहा है फेजर डायग्राम ड्रॉ करने में तो आप तुरंत इमीडिएट पूछ सकते हैं। तो इन फर्स्ट केस इज यूनिटी पावर फैक्टर, रेजिस्टिव लोड। लोड इज रेजिस्टिव, रेजिस्टिव लोड। हमने लोड क्या कनेक्ट किया है? रेजिस्टिव लोड कनेक्ट किया। इन केस ऑफ रेजिस्टिव लोड आई एम ड्राइंग द फेजर डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। तो V एंड I विल बी इन सेम फेस। V और I आपका सेम फेस में रहना चाहिए। तो अगर V एंड I अगर आपका सेम फेस में रहेगा, ठीक है, V एंड I सेम फेस में रहेगा, IARA ड्रॉप कहां जाएगा? Can anybody say where will be IARA drop? I के ही फेस में रहेगा।
क्योंकि रेजिस्टेंस ड्रॉप क्या होता है, करंट के डायरेक्शन में होता है। तो IaRa ड्रॉप क्या हो जाएगा आपका, सेम फेज में हो जाएगा, IaRa। देखो आपके पास इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू V प्लस IaRa प्लस J टाइम्स XA प्लस XL, लीकेज रिएक्टेंस प्लस आर्मेचर रिएक्शन, लीकेज रिएक्टेंस प्लस आर्मेचर रिएक्शन। तो IaRa ड्रॉप क्या हो जाएगा, रेजिस्टिव ड्रॉप, सेम डायरेक्शन में। IaXL कहां हो जाएगा, 90 डिग्री। J आ गया, J आ गया हमारे पुराने कंसेप्ट, ओल्ड कंसेप्ट ट्रांसफार्मर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। The inductive drop lags by inductive voltage lags by inductive voltage leads by current by 90 degree। तो IaXL हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा IaX लीकेज रिएक्शन एंड आर्मेचर रिएक्शन, लीकेज रिएक्शन एंड आर्मेचर रिएक्शन, और ये दोनों का सम हो जाएगा आपका। वेरी सिंपल, हो गया आपका फेजर डायग्राम कंप्लीट। फेजर डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर एट यूनिटी पावर फैक्टर, फेजर डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर एट unity power factor, or you call it as a phasor diagram of synchronous generator, phasor diagram of cylindrical pole synchronous generator at unity power factor or at resistive load। ये बना लो फास्ट, इक्वेशन देखो फॉलो कर रहा है, E is equal to V plus IaRa plus J times IaXL, IA नहीं लिखा मैंने, ठीक है, J times IaXA plus XL। एक हो गया आपका लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप एंड एक हो गया आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, बस दैट्स ऑल। ये आपका सिलेंड्रिकल पोल सिंक्रोनस मशीन का फेजर डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल। सिलेंड्रिकल पोल सिंक्रोनस मशीन का फेजर डायग्राम इज वेरी सिंपल, ठीक है। ट्राई टू ज्वाइन इन टाइम, ठीक है। हो गया सबका, ड्रॉ कर लिए, शैल आई रब इट, शैल आई रब इट, हो गया ड्रॉ, नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग, हो गया फेजर डायग्राम ड्रॉ हो गया। नाउ लिखो सेकेंड, लैगिंग पावर फैक्टर, सेकेंड फेजर डायग्राम लैगिंग पावर फैक्टर। फर्स्ट आपका यूनिटी पावर फैक्टर हो गया, सेकेंड लिखो लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, दैट इज करंट लैग्स, current lags the voltage by voltage by phase angle phi, ठीक है। करंट लैग्स द वोल्टेज बाय कितने से लैग कर रहा है वोल्टेज, बाय फाई। यूनिटी पावर फैक्टर की जगह आप क्या लिखोगे, लैगिंग पावर फैक्टर, राइट इट एज लैगिंग पावर। इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, लोड क्या है आपका, इंडक्टिव है, लोड आपका इंडक्टिव है। लोड इंडक्टिव है मींस करंट एंड वोल्टेज फेज में नहीं है, लोड इंडक्टिव है मींस करंट एंड वोल्टेज आर नॉट इन फेज। तो सेम है फेजर डायग्राम, आप बिल्कुल सिंपल वे में ड्रॉ करो, देयर विल बी नो कंफ्यूजन एट ऑल। V V, ठीक है, फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, टर्मिनल वोल्टेज V, टर्मिनल वोल्टेज आप क्या लोगे, V लोगे, फिर V को क्या करोगे आप, राइट, तो आप क्या करोगे, वोल्टेज लोगे, ठीक है। तो वोल्टेज हमने रेफरेंस क्या माना, वोल्टेज। करंट को मैं क्या बोल रहा हूं, करंट इज सेम लैग्स बाय वोल्टेज फाई, ठीक है। लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर में करंट क्या करेगा, लैग करेगा बाय सम एंगल से फाई, फाई से लैग करेगा, क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी।
टर्मिनल वोल्टेज इज V। अगर किसी को हैविंग एनी डाउट जस्ट आस्क मी, ठीक है। और वीडियो भी देख लेना आप एक बार, ठीक है, वीडियो में थोड़ा सा पिक्चर और अच्छे से मिल जाए। तो टर्मिनल वोल्टेज V आपने रेफरेंस लिया, लैगिंग पावर फैक्टर है, इंडक्टिव लोड है, तो करंट लैग्स बाय एंगल फाई से लैग कर रहा IA। अब IA RA ड्रॉप क्या होगा, वेयर विल बी द व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ IA RA, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आपने ईमानदारी से ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम बनाया है, मेजरमेंट में आप लोगों ने ब्रिजेस का अगर फेजर डायग्राम बनाया है, तो ये फेजर डायग्राम बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम हमने सबने बनाया था, तो सबको असाइनमेंट भी दिया था, सबने जो गलती किया था वो मैंने चेक करके भी दिया था। अगर इफ यू हैव ऑनेस्टली ड्रॉन दैट फेजर डायग्राम ट्रांसफार्मर, तो आपको IA ड्रॉप XA ड्रॉप लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। V है, IA है, IA RA ड्रॉप क्या होगा, IA के डायरेक्शन में होगा, तो IA RA वेयर विल बी द व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ IA RA, सेम IA के डायरेक्शन। ये हो गया सबका ड्रॉप IA RA, एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ IA XA एंड IA XL, 90 डिग्री। ये हो गया IA XA, ये हो गया IA XL, ठीक है। और ये दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा V। सॉरी, when you add this you will get a E। when you add this you will get a E। तो इक्वेशन क्या है, E is equal to V plus IA RA plus J times IA XA plus सेम इक्वेशन फॉलो करना है, बट यहां पे क्या है, द पावर इज लैगिंग पावर फैक्टर, पावर इज लैगिंग पावर फैक्टर। और इन केस ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर, द फेजर डायग्राम फॉर सिलेंड्रिकल पोल सिंक्रोनस मशीन इज, सेलिएंट पोल में चेंज होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे 2 क्लास के बाद, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल पोल सिंक्रोनस मशीन हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, आप इसके न्यूमेरिकल्स ज्योमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हो और बाय ट्रिग्नोमेट्री भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको E निकालना है, तो अगर मैं E का फार्मूला लिख रहा हूं, अगर E का फार्मूला लिख रहा हूं, तो E को आप लिख सकते हो, E इज इक्वल टू, और E स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखो केयरफुली, V cos फाई, ये हो गया V cos फाई, इतना टर्म क्या हो जाएगा, V cos फाई प्लस IA RA का स्क्वायर, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम, प्लस दिस V sin फाई प्लस V sin फाई प्लस IA एक्सेस। ये पूरा जो है IA एक्सेस है, जस्ट बाय पाइथागोरस थ्योरम यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम आप अगर ज्योमेट्री को फॉलो करेंगे, तो दिस E स्क्वायर इज इक्वल टू V cos फाई प्लस IA RA का स्क्वायर प्लस V sin फाई प्लस IA एक्सेस का स्क्वायर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज बाय फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम से आप निकाल सकते हो, और अगर आपको वहां मैग्नीट्यूड वाइज निकालना है, तो आपको E से निकाल सकते हो। E स्क्वायर इज इक्वल टू, और E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ V cos फाई प्लस IA RA का स्क्वायर प्लस V sin फाई प्लस IA एक्सेस का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम भी कर सकते हो। इसके पहले केस का मैंने लिखा नहीं था इसका ये इक्वेशन, ये इसके पहले केस का आप इक्वेशन लिखोगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका V प्लस IA RA का स्क्वायर प्लस IA एक्सेस का स्क्वायर अंडर रूट। ये प्रीवियस केस का है, ठीक है। दिस इज फॉर उसके लिए, ये दिस इक्वेशन इज फॉर रेजिस्टिव लोड। E इज इक्वल टू V था, उसी के डायरेक्शन IA RA स्क्वायर प्लस I। रेजिस्टिव लोड के लिए ऊपर के फेजर डायग्राम में ड्रॉ करना, लिख लेना E इज इक्वल टू VRV प्लस IA RA स्क्वायर प्लस IA एक्सेस का स्क्वायर।
Now tell me if anybody having any doubt or queries in this phasor diagram. किसी को अगर कोई डाउट है इस इक्वेशन में, क्यूरीज है, तो आप पूछ सकते हो. यू कैन आस्क एनीबडी हैविंग एनी डाउट, एनी क्यूरी इन फेजर डायग्राम. फेजर डायग्राम में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो. ठीक है, यू कैन आस्क. ठीक है, आप पूछ सकते हो. डोंट बी साइलेंट, साइलेंट मत रहो. ठीक है, एनीबडी हैविंग एनी डाउट, क्यूरीज, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट आस्क मी. ओके. थर्ड केस, लीडिंग पावर फैक्टर. थर्ड केस, लीडिंग पावर फैक्टर. थर्ड केस लिखो, लीडिंग पावर फैक्टर. और यू कैन से फेजर डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, सिलेंड्रिकल पोल सिंक्रोनस जनरेटर एट लीडिंग पावर फैक्टर. लीडिंग पावर. पहले हमने फर्स्ट था रेजिस्टिव लोड, यूनिटी पावर फैक्टर. सेकेंड था आपका इंडक्टिव लोड, लैगिंग पावर फैक्टर. एंड थर्ड वन इज लीडिंग पावर फैक्टर. We call it as a capacity load. Capacity load. Leading power factor means capacity. अब आपको कैपेसिटी लोड पे ड्रॉ. You have to draw the phasor diagram and leading power factor से कैपेसिटी लोड. कैपेसिटी लोड पे आपको ड्रॉ करना. तो यू कैन ड्रॉ दिस. आप ड्रॉ कर सकते हो बिल्कुल, कोई इश्यू नहीं रहना चाहिए. बस आपका लोड जो होगा वो लोड क्या हो जाएगा, लोड क्या हो जाएगा, लीडिंग लोड. पावर फैक्टर जो हो जाएगा लीडिंग लोड. अगर मेरा करंट ऐसा है, करंट कहां जाएगा, करंट लीड्स द टर्मिनल वोल्टेज बाय फाई. करंट क्या कर रहा है, फाई एंगल से टर्मिनल वोल्टेज को लीड कर रहा है. करंट फाई टर्मिनल वोल्टेज को लीड कर रहा है. करंट टर्मिनल वोल्टेज को लीड कर रहा है. दिस इज कॉल्ड एज लीडिंग पावर फैक्टर. अब IARA बनाओ आप, IAXL, IAXS बनाओ और सबको ऐड करके E बनाने की कोशिश करो. जस्ट ट्राई योरसेल्फ. लीडिंग पावर फैक्टर की बनाने की कोशिश करो. ट्राई टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर लीडिंग पावर फैक्टर. ज्वाइन करो. IARA कहां होगा, where will be IARA? IARA will be in the direction of IA. IAXS, IAXL perpendicular to IA. perpendicular to ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा लीडिंग पावर. तो ट्राई टू ड्रॉ इट. ड्रॉ करने की कोशिश करो. जस्ट ट्राई योरसेल्फ. अगर आप ड्रॉ कर सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड. ट्राई टू ड्रॉ इट. किसी का बना क्या, एनीबडी, एनीबडी, कोई कुछ बोलता ही नहीं है. किसी का बन रहा है क्या, ट्राई टू ड्रॉ इट. ठीक है, तो आइए आ रहे क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ आइए. ये दिस, इन द डायरेक्शन ऑफ आइए. आइए जितना एंगल से फाई से है, वी से है, उतना ही डायरेक्शन से आइए आ रहे होगा. हो गया, सबका बन गया आइए आ रहे. आइए आ रहे विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ आइए आ रहे जो होगा, आइए आ रहे विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ आइए. देखो एकदम एग्जैक्टली पैरेलल होगा. फिर सीधा क्या आपको क्या आइए एक्स से एक्सएल एंड आइए एक्स से करना है, वो 90 डिग्री कर दो आप. 90 डिग्री ये हो गया आपका आइए एक्सएल, आइए एक्सएल एंड ये हो गया आपका आइए एक्स ए. और ये दोनों को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा. चेक करो, जस्ट चेक इट. Are you getting this or not? Then you will get a E.
विल गेट अ ई। इसमें मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ई, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पे हो, कहाँ ड्रॉ होगा? ये दोनों मिला के क्या होता है? आई ए एक्सेस होता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा और ई निकालना पड़ेगा। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी कॉस फाइव प्लस आई ए आर स्क्वायर। ये ऐसा आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी कॉस फाइव, इतना मैग्नीट्यूड ओ ए मैग्नीट्यूड प्लस आई ए आर ए, दिस इज आई आर ए, दिस इज आई आर, आई आर ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वी साइन फाइव, वी साइन फाइव ये बनेगा। वी साइन फाइव क्या बनेगा? ये पूरा टोटल टोटल बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वी साइन फाइव क्या बनेगा? इतना बनेगा। और आई ए एक्सेस इतना है, तो आई ए एक्सेस माइनस वी साइन फाइव करोगे तो मुझे ये मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो आई ए एक्सेस माइनस वी साइन फाइव, इसका स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा ई स्क्वायर। थोड़ा सा केयरफुल देखो, ज्योमेट्री है, कुछ भी उसमें कोई लॉजिक नहीं है। आपके पास बुक है, यू ऑलरेडी हैव बुक। टॉपिक है बुक में वेक्टर डायग्राम ऑफ लोडेड अल्टरनेटर, सेक्शन 37.18। सेक्शन 37.18 आप BL थेरेजा की बुक रिफर कर सकते हो। सेक्शन 37.18 में आपको तीनों फेजर डायग्राम मिल जाएंगे। तीनों फेजर डायग्राम देख लो आप, फिर हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व। राइट, नाउ इफ टेल मी इफ एनीबडी हैविंग एनी क्यूरीज, एनी क्वेश्चंस, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर अंडर लीडिंग पावर फैक्टर, अंडर लीडिंग पावर फैक्टर कंडीशन, अंडर लीडिंग पावर फैक्टर कंडीशन। आप लोग थोड़ा सा केयरफुल रहो। जिस डायरेक्शन में आपका इंटरनेट अच्छा आता है, जहां पे इंटरनेट अच्छी आती है, उस जगह पे आप अपना एक नोटबुक लेके बैठ जाओ। कहीं भी अपने एक कमरे में बंद करके, स्लैब में, टेरेस में, कहीं भी कोने काने में। एंड ऑलवेज listen with notebook, sit with notebook. This is not lecture of just recording, motivational lecture नहीं है, ये highly technical lecture है। Maybe whatever may be the quality, whatever may be the this, but आपको समझना बहुत important है। आप कैसे भी समझो, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो you will suffer for whole life। अगर आप कोई भी एग्जाम में अपेयर करोगे तो लॉजिक तो रहेगा ही। What is synchronous generator? What is cylindrical pole synchronous generator? How to draw phasor diagram at leading power factor condition? So this is a phasor diagram of synchronous generator at leading power factor. Anybody having any questions? Just बताओ, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। ठीक है, हमने अभी सिलेंड्रिकल पोल पढ़ा है, ये याद रखना। ठीक है ना, सेलिएंट पोल का थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, और बाकी ये जो इक्वेशन आया है जस्ट ज्योमेट्री से आया है। ये इक्वेशन तो है ही आपका, E इज इक्वल टू V प्लस IARA प्लस J टाइम्स IA एक्सेस। दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी देयर। और फिर ज्योमेट्री से हमने ये निकाला है, हमने ट्राइंगल क्या लिया? OAB लिया है। ट्राइंगल OAB। ट्राइंगल OAB में क्या, OAB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? एक मिनट थोड़ा सा ये हो गया। We have taken a triangle OAB, so E square, this is hypotenuse, हाइपोटेन्यूज OB है। ठीक है,
ठीक है, थोड़ा सा केयरफुल रहना। हाइपोटेन्यूज इज ओ बी, थोड़ा सा इधर पे मिस्टेक हुआ है, ट्राई टू डाउनलोड इट, दिस इज योर 90 डिग्री, 90 डिग्री जो है वो यहाँ पे है, ओ बी इज हाइपोटेन्यूज, दैट इज व्हाई, see it carefully, OB is hypotenuse, तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो OB का स्क्वायर क्या हो गया, E स्क्वायर हो गया, OA का स्क्वायर क्या हो गया, V cos phi प्लस IR, V cos phi प्लस IR, एंड ये हमें छोटा सा पार्ट चाहिए, तो ये छोटा सा पार्ट के लिए क्या लेंगे हम, V sin phi ये है और ये IA एक्सेस है, तो IA एक्सेस, ये पूरा IA एक्सेस है, उससे V sin phi मैंने माइनस किया, तो मुझे क्या मिला, AB मिला, तो आप लिख सकते हो AB इज इक्वल टू V sin phi माइनस IA। ये इसको वर्कआउट करना पड़ेगा, टुडे यू हैव टू वर्क फॉर दिस। आज पूरा आज फेजर डायग्राम पढ़ो आप घर में, कोई कंफ्यूजन है तो कल टुमारो वी विल डिस्कस इट, ठीक है। फिर अगर टुमारो हम ये डिस्कस करेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो एटलीस्ट वन न्यूमेरिकल वी विल सॉल्व हियर, तो सीट विथ योर कैलकुलेटर, कॉम्प्लेक्स मोड वगैरह कैसे ऑपरेट करना है हमने बहुत पढ़ा है नेटवर्क्स वगैरह में, तो वो आप पढ़ के आओ कल, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह भूलो मत, एंगल, डिग्री टू रेक्टेंगुलर टू पोलर वगैरह उसके जो कंसेप्ट है नेटवर्क्स के, तो यहाँ भी थोड़ा सा लगेंगे, ठीक है। एनीबडी हैविंग एनी डाउट, क्यूरीज पूछ सकते हो, अदरवाइज आई एम स्टॉपिंग हियर, ठीक है, राइट। आपको मैंने वर्क दे दिया है, इट्स योर वर्क टू फिनिश इट। आज आप पूरा नाइट जागो या कैसे भी जागो, पूरा टाइम डिवोट करो और ये फिनिश करो आज फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम एट यूनिटी पावर फैक्टर, फेजर डायग्राम एट लीडिंग पावर फैक्टर एंड लैगिंग पावर फैक्टर, सब लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे और ऐसे असाइनमेंट आप बिल्कुल रेडी रखो, मैं आपको सबमिट करने बोलूंगा, PDF